नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भाव भावीश्वर महादेव की भगवती पीताम्बरा मात की पराम्बा भगवती दुर्गा मात की ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज। ओम नमः पार्वती पतये हर हरि बोल हरि बोल। आज કેટલામી? સાતમી। પારંબા ભગવતી માતા દુર્ગા દેવી એમના જ અનુગ્રહથી જે સંકલ્પ પ્રાપ્ત થયું હતું નવચંડીઓ આદિવાસી વિસ્તારમાં કરવાનું એ સફળતાપૂર્વક ચાલી રહ્યો છે। કારણ સંકલ્પ એમનો જ હતો। ભગવાન સત્ય સંકલ્પ અને માતાજી પણ સત્ય સંકલ્પ। એમ તો તમે જોવા જાઓ ને તો રાજ્ય તો માતાજી લોકોનું જ હોય છે। ખુશ થઈ ગયો છે માતાઓનું રાજ્ય। તમે જુઓ ને આપણા ભગવાનોને જ જો બિચારાઓને ભગવાન વિષ્ણુને જુઓ તો ત્યાં કોણ રાજ કરે? લક્ષ્મી વગર કઈ ચાલે કે? બોલો। એટલે લક્ષ્મીજી શાસન કરતા હોય છે। એમના જ હાથમાં વિત્ત મંત્રાલય એટલે નાણાં ખાતું એમના હાથમાં। એટલે જે કંઈ કરવું હોય તે લક્ષ્મીજી કરે। એટલે વિષ્ણુ ભગવાન બિચારા શેષનાગ ઉપર જઈને ક્ષીરસાગરમાં ઉડી ગયા કે ભાઈ તારે જે કરવું હોય તે। મહાદેવજીને ત્યાં કોણ? બોલો, પાર્વતી માતાજી। અને આ જે પાર્વતીજી છે ને એ જ દુર્ગા છે। અને એમાં જ મહા સરસ્વતી, મહાલક્ષ્મી અને મહાકાલી
આ ત્રણેયનું સ્વરૂપ છે. મહાસરસ્વતીના રૂપમાં ભણતરનો આખો કાર્યક્રમ કોના હાથમાં આવી ગયો? સરસ્વતી માતાજીના હાથમાં. અને સંરક્ષણ ખાતું એટલે ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી. આ સંરક્ષણ ખાતું એ કોના હાથમાં આવ્યું? તો કાલિકા માતાજીના હાથમાં આવ્યું. એટલે જ બધા રાક્ષસોને ઠેકાણે પાડ્યા છે. ગૃહ મંત્રાલય તો મહાલક્ષ્મી પાસે, એજ્યુકેશન મિનિસ્ટ્રી તો સરસ્વતીજી પાસે, અને ડિફેન્સ રક્ષણ ખાતું તો મહાકાલી પાસે. હવે ભગવાન પાસે ગયો છું એટલે જઈને કૈલાસ પર્વત પર બેસી ગયા બિચારા, શાંતિથી ભજન કરે. એટલે તમે જોવા જાઓ તો બધું ખાતું તમારા જ હાથમાં હોય છે. માતાઓ, તમે બહુ પ્રબળ છો. સ્ત્રીઓને અબલા કહેવામાં આવે. સ્ત્રીઓને શું કહેવામાં આવે? અબલા. અબલાનો મતલબ હોય છે બિચારીમાં કાંઈ નથી. પણ આ બધું ખોટું છે. સ્ત્રી અબલા નથી, સ્ત્રી તો પ્રબલા છે. અત્યંત શક્તિશાળી છે. અગર એ તમારા ઘરમાં બહુ જ સારી છોકરી આવી ગઈ, છોકરા સાથે પરણેલી, તો ઘરને જો કેવું બનાવી દે છે, એકદમ સારામાં સારું. અને અગર જે ચામુંડા આવી ગઈ તો ગોવિંદાય નમો નમઃ. એટલે હે દેવીઓ, તમને બી હું કહેવા માંગુ છું, તમારું જે સાત્વિક સ્વરૂપ છે એ જ રાખજો. એ ચામુંડા વાળો નહીં કરતા. હા, ચામુંડા વાળો સ્વરૂપ રાખવાનું. જ્યાં કોઈ તમને હેરાનગતિ કરે, પરેશાન કરે, તમારી છેડતી કરે, તો પછી પૂજા પાઠનો પ્રોગ્રામ નક્કી કરો, કાંઈ વાંધો નહીં. પૂજા પાઠ એટલે ઠોકમઠાક ઠોકી નાખવા. પછી ત્યાં તમે કરાટે માસ્ટર થઈ જાઓ તો કાંઈ વાંધો નથી. આજે મંગલાચરણમાં જે વાતો તમને કહી રહ્યો છું ભગવતીની, એ જ મંત્રના રૂપમાં છે. એટલે તમારા પાસે આ મંત્ર પહેલા બોલાવું છું, પછી એની વ્યાખ્યા ઓર વધારે હું તમને સંભળાવીશ. એક વાત તો તમને આ પણ કહેવા માંગીશ કે આપણે ત્યાં ભાગવત, શ્રીમદ ભાગવત પણ છે અને શ્રીમદ દેવી ભાગવત પણ છે. બે છે. અને ઘણા બધા લોકોમાં દુરાગ્રહ પણ હોય છે. અને એ લોકો માનતા હોય છે કે ભાગવત તો માત્ર શ્રીમદ ભાગવત જ છે. પરંતુ એવું નથી દીકરાઓ. નિશ્ચિત રૂપથી શ્રીમદ ભાગવતની કથા હું કરું છું અને એની વ્યાખ્યાઓ પણ તમે મારા મોઢેથી ખૂબ જ સાંભળી છે. પણ એનો અર્થ એવું નથી કે દેવી ભાગવતને અમે ભાગવત નથી માનતા. હું પોતે પણ માનું છું કે દેવી ભાગવત પણ ભાગવત છે. ભાગવતનું જ સ્વરૂપ છે દેવી ભાગવત પણ. 18 પુરાણોમાં આ 5મું પુરાણ છે, શ્રીમદ દેવી ભાગવત.
લોકોનો બહુ જ આગ્રહ હોય છે, જે વિદ્વાનો છે, દેવીના ભક્તો હોય છે, એ લોકોનું કેવું છે કે નહીં, દેવી ભાગવતને જ ભાગવત માનવું જોઈએ. આ ભાગવતનો અર્થ કરીએ અગર આપણે, તો બંનેમાં ઘટિત થાય છે, ભગવાનમાં પણ અને ભગવતીમાં પણ. ભગવત્યાહ ઇદમ ભાગવતમ, જે ભગવતીના ચરિત્રનું પ્રતિપાદન કરે, જે ભગવતીના ચરિત્રનું વ્યાખ્યાન કરે, ભગવતી માટે કંઈક કે, એનું નામ ભાગવત. અને ભગવત ઇદમ ભાગવતમ, જે ભગવાન માટે ચર્ચા કરવામાં આવતી હોય એનું નામ પણ ભાગવત. તો બંને જ અર્થોમાં ભાગવત તો ગ્રાહ્ય છે જ છે. એટલે હું પોતે પણ અને જે સારા વિદ્વાનો છે બીજા પણ એ સ્વીકારે છે એ વાતને कि श्रीमद् भागवत तो भागवत है ही है, लेकिन देवी भागवत भी भागवत है. અને એનો વિરોધ નહીં કરી શકાય, એનો વિરોધ नहीं कर શકાય. मैंने अभी अभी तुम लोगों को सुनाया और तुम लोग खुश भी हो गए इस बात से कि घर में કોનું ચાલતું હોય, બોલો. આ પુરુષોને અમે કહીએ ને, હું પોતે પણ કહું, એ ભગત આપણે એવું કામ કરવાનું છે. હા ગુરુજી, આવતીકાલે કરીએ વાત. તો હું કામ આવતીકાલે ભાઈ? કારણ કે ઘરમાં જઈને ધણિયાની જોડે વાર્તાલાપ કરવું પડે, વાતચીત કરવી પડે ને, એનાને સમજાવવું પડે, કહેવું પડે કે આપણા ગુરુજીની આજ્ઞા છે અને આપણે આ કાર્યક્રમ કરવાનો છે, આપણા માટે ફાયદાકારક છે. અને પછી ત્યાં હોમ મિનિસ્ટ્રીમાંથી સેન્કશન થાય તો પછી બીજા દિવસે મને આવીને કે આ ગુરુજી પાકો છે. ત્યારે પહેલાનું હું મોઢો જોઉં, દેખો આ વાત તું ગઈકાલે પણ કહી શકતો હતો મને કે પાકો છે, પણ હું સમજુ છું કે નહીં કહી શકે બિચારો. જરૂરી છે. તો બોલો કોનું ચાલ્યું? તમારું ચાલ્યું. કેટલું પ્રસન્નતાપૂર્વક એટલું આ ચાલ્યું. તમે તો માનીએ જ છીએ, અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ, બરાબર છે. અહીંયા પણ જુઓ તમે, આ જે મંગલાચરણ છે કેટલું ફાઇન છે. અને એમાં શું કહેવા માંગે છે ભગવાન વેદવ્યાસ? બોલીએ ઓમ સર્વ ચૈતન્ય રૂપામ તામાદ્યામ વિદ્યામ ચ ધીમહિ बुद्धिं यानः प्रचोदयात्. एक प्रकारથી આ ગાયત્રી મંત્ર છે, દેવી ગાયત્રી. જેમ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ આ ગાયત્રી મંત્ર છે, તેવી જ રીતે આ દેવી ભાગવતનું મંગલાચરણ રૂપ દેવી ગાયત્રી મંત્ર છે. અને એમાં પહેલો અક્ષર આવ્યું ઓમ. યાદ રાખજો, સંસારમાં અગર કોઈ સાર વસ્તુ છે અને પ્રાપ્તવ્ય છે, પ્રાપ્ત કરવા જેવી છે, અનુભૂતિ કરવા જેવી છે, તો દીકરાઓ એ ઓમ જ છે, માત્ર અને માત્ર ઓમ. એટલે જ તમે જુઓ, મંગલાચરણના રૂપમાં પહેલાં તમારા પાસે હું બોલાવું છું ઓમ. आप कितना समझेंगे और कितना लेंगे इसकी मुझे चिंता नहीं है. अच्छी बात सुनाने का मेरा स्वभाव है और तुम्हारे अंदर संस्कार डालना चाहता हूँ. देखो, संसार का सार वेद. संसार का सार कौन? वेद. और वेदों का सार गायत्री. बोलो, वेदों का सार गायत्री.
और गायत्री का सार व्याहृतियां, बोलो व्याहृतियां, व्याहृतियां। वेदों का सार गायत्री, गायत्री का सार व्याहृतियां। व्याहृति क्या होती है? भूर्भुवस्व, बोलो ये जो तीन है, ये तीनों व्याहृति कहलाती है। व्याहृति का तात्पर्य होता है विशेष रूप से आपके हृदय के अंदर आपकी वृत्ति को परमात्मा के साथ, भगवान के साथ आहरण करके, आहृत करके, जोड़ करके और जो लगा दे उसका नाम व्याहृति होता है। और ये बहुत बड़ी कृपा होने पर ही सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं होती है। व्याहृति अपने आप में मंत्र है, अपने आप में मंत्र है। तो आपने समझा संसार का सार क्या? बोलो जोर से। अभी मैंने बोला, जोर से बोलो। હું ડો થઈ ગયો છું, ગરડો છું, મને ઓછું સંભળાય છે। जोरથી बोलो, શું? वेद। संसार का सार और वेदों का सार। ये पंडित लोग तुम मत बोलो, इनसे बोलो, मैं उनको सिखा रहा हूँ, तुम तो सीधे सिखाए बैठे हो। वेदों का सार गायत्री। और गायत्री का कल मैंने एक बहुत बढ़िया अर्थ तुम लोग को बतलाया था। अब तो तुम तो क्या डालना घी की औलाद हो, इसलिए याद नहीं रहता। फालतू की बातें तो याद हो जाती है, लेकिन अच्छी बात सुनाओ तो नहीं याद रहती है। एक दिन एक महात्मा जी के पास में एक बहन आई, आने के તમે બહુ સારું પ્રવચન આપો છો, બહુ સારું બોલો છો મહાત્માજી, તમે મને બહુ ગમો છો, તમારું બોલવાનું બી મને બહુ ગમે છે, પણ મને યાદ કાંઈ રહેતું નથી। તમે બહુ સારા છો બુધિયાભાઈ, બોલજી હા, તમે બહુ સારા છો, બહુ સારું બોલો છો, ગમો છો, પણ મહાત્માજી શું કહું, યાદ કંઈ રહેતું નથી। તો મહાત્માજીએ કહી દીધું કે રાંડ તારી ખોપડીમાં કંઈ જતો નથી। મહાત્માજી એવું કીધું, રાંડ, આ રાંડ ગાળો હોય ને, કોઈને બી નહીં કહેવાય। ગંગા સ્વરૂપ કહેવામાં આવે, વિધવા સ્ત્રી કહેવામાં આવે, પણ આ રાંડ તો બોલવાનો જ બહુ બેકાર લાગે ને। પણ મહાત્માજીને કાંઈ હરમ આવી નહીં, સીધું સંભળાવી દીધું, રાંડ તને કાંઈ સમજણ પડતી જ નથી, હું આટલું બોલું છું તો પણ। અરે પેલી બહેન જે છે બીજા દિવસે સત્સંગમાં આવીને આગળ જ બેસી ગઈ, અને જે પણ સાંભળવા આવે તેને આ મહાત્મા નાલાયક દુષ્ટ છે, આ મહાત્મા ગાંડો થઈ ગયો છે, મને રાંડ બોલ્યું। મને કહે છે કે રાંડ તને કઈ યાદ રહેતો જ નથી। महात्मा जी सुनते रहे, बैठे 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 बैठे, सब लोग आ गए, सब भगत लोग आ गए। उसके बाद में महात्मा ने कहा, भाइयों मारी बात सामझो, काले आ बेन मारा पासे आ गया, અને આ બેન મને કહે છે મહાત્માજી તમે બહુ સારો પ્રવચન કરો છો, બહુ સારું બોલો છો, પણ યાદ રહેતો જોરથી યાદ રહેતો એમ મને કહ્યું। એટલે મેં એને કહ્યું કે હે રાંડ, તારી ખોપડીમાં કેમ કાંઈ ભૂસો ભરાયેલું છે, કાંઈ તને નથી યાદ રહેતો? હું જાણી જોઈને એમ કહ્યું,
अब बोलो એને આ રાણ યાદ રહ્યો કે નહીં? અને બધાને ભેગા કરીને કહી છે આ મહાત્મો ગાંડો થઈ ગયો, દુષ્ટ છે. મને ગઈકાલે 24 કલાક પહેલા મેં વાત કરી હતી, એને યાદ છે. એને રાણ તો યાદ રહી ગયો પણ રામ યાદ રહેતો નથી. તો એનો હું શું કરું? તો તમને પણ સારી વાતો અમે શીખવાડીએ ને તો યાદ રહેતી નથી. હવે હું ગઈકાલે જ ગાયત્રીનો અર્થ કરીને આવી ગયો છું શેરીમાલમાં, પણ આજે હું પૂછીશ તો ગોવિંદાએ બધું પાણી ઉપરથી નીકળી ગયું. આજે પાછો કહું છું, સાંભળી લો. ગાયંતમ બોલો, ત્રાયતે રક્ષતિ ઇતિ ગાયત્રી. જે ગાયત્રી મંત્રનું ગાન કરે, જે વ્યક્તિ ગાયત્રી મંત્રનું જાપ કરે, એ જાપ કરવાવાળા વ્યક્તિની આ ભગવતી માં પરાંબા તમારું ત્રાણ એટલે રક્ષણ, તમારી રક્ષા કરે, તમને શક્તિ આપે. એ શક્તિ આપવાવાળી છે, એટલા માટે જ એનું નામ ગાયત્રી છે. શું છે? તમારામાંથી કોઈ બહેનનું નામ ગાયત્રી તો હશે કે નહીં? તો એને શીખવાડજો કે બેન તારા નામનું અર્થ તો બહુ મોટું બતાડ્યું છે ગુરુજીએ, તો તારે એવું જ બનીને બતાડવાનું. तो ध्यान आपो, संसार का सार वेद, वेदों का सार गायत्री, और गायत्री का सार व्याहृतियाँ, ये 3 होती हैं. भूर भुव और स्व, ये 3 होती हैं. और इन व्याहृतियों का भी जो सार है वो है ओम. वो क्या है? ओम. यानी सीधी भाषा में बोला जाए बच्चों, तो संसार का सार अगर कोई है तो वह है ओम. संसार નું સાર કોણ? એટલે જ આપણે મંગલાચરણમાં પહેલા 5 વાર શું બોલીએ? અને આ જે ઓમકાર છે એ 3 અક્ષરોથી મળીને પછી તૈયાર થાય છે. अकार बोलो, उकार और मकार. એમાં અર્ધમાત્રા પણ હોય છે ઉપર, અર્ધમાત્રા. પણ આપણે 3નો જ પહેલા પ્રયોગ કરીને જોઈએ. અકાર, અકાર માટે કહેવામાં આવે છે શાસ્ત્રોમાં, આપણે વેદોમાં, અકારો વૈ સર્વાવાક. આકાર જે છે, જેટલા બી શબ્દો છે, જેટલા બી વ્યંજનો છે, ચાહે તમે કોઈ બોલો, ખો બોલો, ગ બોલો, કાંઈ પણ બોલો, છ જે કાંઈ બી બોલી શકો છો, પણ આ બધાનું જ આશ્રય સ્થળ જે છે એ આકાર છે. અગર એમાં આકાર ન રહે તો પછી આપણે એને શું કે હલંત પ્રયોગ, અથવા તો એની ટાંગ તૂટી ગઈ, અડધો અક્ષર થઈ જાય છે. તમને અગર ગ્રામરનું બોધ હોય, જ્ઞાન હોય થોડું પણ, તો તમને મારી વાત સમજાશે. એટલે અકારો વૈ સર્વાવાક, और वैसे अकारो वही वासुदेव है. अकार એ જ ભગવાન વાસુદેવ છે. ઉકારો વૈ બ્રહ્મા, ઉકારથી જ બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ થઈ. मकारो वही महेश्वर है, और मकार ही महेश्वर शिव है. यानी ए, उ और मैं, इन तीनों से किसकी उत्पत्ति हो गई? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की. अब अपने तो भगवान की कथा नहीं, भगवती की कथा कर रहे हैं.
इसलिए यहाँ के ऊपर देखिए आप अब आकार से सत्व गुण बोलो, उकार से रजोगुण और मकार से तमोगुण। आकार से जो सत्व गुण हुआ है उत्पन्न, उससे सत्व की जो देवी है, सात्विकता की जो देवी है, उसे आप सरस्वती के स्वरूप पे देखिए। वो सत्व संपन्ना है, शारदा है, और वही हमको ज्ञान प्रदान करने में सक्षम भी है। उकार रजोगुण है, सृष्टि की उत्पत्ति करने में काम दे रहा है, काम कर रहा है, वो सावित्री है। और मकार ये महेश्वर तमोगुणी, संहार की प्रक्रिया उनके हाथ में दी गई। वहां महाकाली के रूप में भगवती विराजमान है। ऐसी त्रिगुणात्मिका भगवती जो सत्व रज और तमात्मिका है, वो है कैसी? तो कहते हैं चैतन्य रूपाम, वो चैतन्य है। भगवती के बिना, अच्छा बोलो शिव, जरा जोर से बोला करो, भूख लगी है। अपने कीर्तन कितना बढ़िया करते हैं, शिव है शिव है बोलो। बार बोलवानू कही होતું, तो बोलवानू जरूर कही। खाली एक नाम लो, बोलो शिव। एमाथी इकार ने काढ़ी नाखो तो શું બની જાય? શવ। શવ એટલે મુર્દા। મુર્દો કાંઈ કરી શકે? शिव में जो इकार है वो शक्ति है। बिना शक्ति के तो शिव भी शिव नहीं रह जाएंगे, वो भी शव बन जाएंगे। इसलिए त्रिगुणात्मिका भगवती, जिसके लिए कहा जा रहा है ताम आद्याम, वही इस जगत में आदि शक्ति है। और आप लोग तो आरती बहुत अच्छी करते हो, गुजराती के अंदर है ना वो माँ आद्या शक्ति, क्या गाते हो ना? हाँ, जय आद्या शक्ति, कितनी बड़ी आरती है। तमने लोगों નથી આવડતી કે ગાતા? જે આવડે છે? હા, તો આ પંડિતો નથી આવડતી, એટલે તમે લોકો બોલા કરો ને આરતી। हाँ, माँ आद्या शक्ति आवड़े તમને? हाँ, तो बोलाओ ना, તમે तो एक जो कापराची आरती रोज रोज। मैंने कहा हो सूर्य प्रकाश को कि कापरा हूँ क्या करे। भगवती की तो घड़ी बड़ी आरती थी, सारी आरती थी, અને આ तो बहुत सुंदर आरती है। जय माँ आद्या शक्ति है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अब 23 तारीख को ही है नवचंडी मोटा पूर्णा, तो मोटा पूर्णा में 23 तारीख को माँ आद्या शक्ति की आरती सब याद करके, हे विद्वान पंडितों, डोका नहीं हिलाने का, छटांग भर की जवान को हिलाने का बोलते हैं, और बहुत बड़ी आरती तैयार करके आने। अपने को यही आरती करना है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ताम आद्याम, आद्याम सर्वप्रथमाम शक्तिम, संसार की कारण रूप, संसार को उत्पन्न करने वाली, संसार का पालन करने वाली और संहारात्मिका शक्ति स्वरूपा अगर कोई है तो आद्याम प्रकृतिम भगवती, वो भगवती जगदम्बा ही है, दुर्गा ही है, जो सभी को ये शक्ति दे रही है। तब उस विद्या का हम ध्यान करते हैं, विद्याम च धीमहि, उस विद्या का जो सत्व संपन्ना है, उस विद्या का हम ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं, बुद्धिम
नः प्रचोदयात्। जैसे धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है ना, ठीक वैसा ही ये गायत्री है। यहाँ पर बुद्धिम या नः प्रचोदयात्, वो भगवती ही हमको प्रेरणा करे, अच्छी प्रेरणा करे और अच्छे काम करने की शक्ति सामर्थ्य हमको दे। बोलो ऐसी प्रार्थना करना पसंद करोगे कि नहीं? તમને બધાને પૂછું છું, તમે ભગવતી પાસે ઉભા થઈને એવી પ્રાર્થના કરશો કે નહીં कि हे माँ, हे जगदम्बा, हमारी बुद्धिने तू प्रेरणा आप कि જેનાથી અમે સારા સંસ્કારી બનીએ, વિદ્વાન બનીએ અને બ્રહ્મ વિદ્યાના અધિકારી બનીએ, એવી પ્રેરણા હે માँ તું આપ। એમ પણ તમને એક પ્રશ્ન પૂછ્યું જો નાના બાળકો છે એ જવાબ આપે। તમારા માતા પિતા ખાસ કરીને માં બોલો તમને સારા સંસ્કાર આપે છે કે ખરાબ? જોરથી બોલો। સારા સંસ્કાર આપે। માં કોઈ દિવસે કોઈ પણ છોકરાને ખરાબ સંસ્કાર આપતી નથી। સારી જ શિખામણ આપે છે કે દીકરા તારે એમ કરવું જોઈએ, તારે એમ કરવું જોઈએ। અને આ પ્રેરણા આપનારી આપની જે માં છે એ ભગવતીનું સ્વરૂપ છે, ભગવતીનું સ્વરૂપ છે। मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, अगर तुमने इन जिंदे माँ बाप का आदर नहीं किया, अगर इन जिंदे माँ बाप को तुमने मातृदेवो भव पितृदेवो भव के स्वरूप में नहीं पहचाना और नहीं सम्मान दिया तो फिर पत्थर की मूर्तियों को पूजने से कोई फायदा होने वाला नहीं है तुम्हारे। पहले इनको पूछो, इनको पूछो, इनके चरणों में सर झुकाओ। ये कैसे भी हैं, तुम्हारे तो माँ बाप है, तुम्हें तो पैदा किया है, पेट में धारण किया है 9 महीने तक, बाहर निकलने के ऊपर तुम्हें संभाला है। तुम जिस रूप में बाहर पैदा हुए थे कोई हाथ लगाना पसंद नहीं करेगा, चारों तरफ खून से लथपथ थे। माँ है कि उसे कोई घृणा नहीं होती है, और उसमें भी गाय का तो नाम ही वत्सला है। गाय का एक नाम इसलिए वत्सला है कि वो अपने वत्स यानी बछड़े को बड़ा प्यार करती है, बड़ा प्यार करती है। और वो खून से सतपथ पैदा हुआ होता है, गंदगी लगी रहती है, बोलो कैसे साफ करती है? ईमानदारी से बोलो, तुम तो गऊ पालते हो ना, बराबर ना? कितना स्नेह, कितना प्रेम कि तुम्हारी गंदगी को वो जीभ से साफ करती है। इसीलिए तो वात्सल्य रस सबसे महान होता है, श्रेष्ठ होता है। गाय को वत्सला कहते हैं। बच्चों, ऐसे माँ बाप का तिरस्कार नहीं करना कभी भी। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया होता है, बहुत कुछ किया होता है, तब जाकर के तुम आज मेरे सामने देवी भागवत श्रवण करने की सामर्थ्य लेके बैठे हुए हो। ये केवल माता पिता और सदगुरु का ही अनुग्रह होता है, आशीर्वाद होता है जो आप यहाँ तक आ जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ताम आद्याम विद्याम, उस आदि जगत जननी उस भगवती का हम ध्यान भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। बुद्धिम यानः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को वह प्रेरणा करे कि हम सात्विक बन करके रहें, सत्व गुण संपन्न बन के रहें और अच्छे अच्छे कामों में ही हमारा मन लगे। पानी का एक स्वभाव होता है बेटा, वो नीचे की ओर जाता है,
आप हाथ में पानी ले लो और फिर ऐसा पानी डालो यहाँ, तो किधर जाएगा? इधर आएगा कि नीचे जाएगा? अच्छा, इसके ऊपर डालो, ये जो है मेरे लिए बनाया है ना, इसमें पानी डालो तो कहाँ जाएगा? वो जयराम भाई की गोद में जाएगा। ऊपर चढ़ेगा। वैसे ही जीव मात्र उन सभी की वृत्तियों का जो प्रवाह है वो हमेशा इंद्रियों के भोगों की ओर ही जाता है, इंद्रियों के भोगों की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, विषयों की ओर जाता है। अगर उसको ऊपर की ओर लाना होगा तो बुद्धिम या न प्रचोदयात्, भगवती से प्रार्थना करना पड़ेगा और वहां के ऊपर वाटर पंप लगाना पड़ेगा जिससे बहता हुआ पानी नीचे की ओर न जाके, जब अपने टांकी में पानी भरते हैं तो क्या चलाते हैं? मोटर चलाते हैं, पंप चलाते हैं। ठीक वैसे ही ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना भी एक पंप है और इस पंप के द्वारा तुम भगवती से निवेदन कर सकते हो कि हमारा ये विषयाकारा मन, विषयों की ओर जाने वाली जो वृत्ति है, हे भगवती, इसको तुम सत्व गुण की ओर ले जा, ऊपर की ओर ले जा, जिससे हम तुम्हारा चिंतन कर सकें, तुम्हारा ध्यान कर सकें। ऐसा इस देवी भागवत का ये पहला श्लोक नहीं है, ये मंत्र है और ये मंगलाचरण है। सौनक नाम के महात्मा है, उन्होंने सूत से कहा, बहुत भाग्यशाली हैं आप जो सभी पुराणों का अध्ययन स्वयं भगवान वेदव्यास से किया। अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नगर, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। अच्छा, एक बात याद आ गई इसलिए बोल देता हूँ। पता नहीं क्यों करके लोगों के मन में ऐसी दुर्भावनाएं पैदा कर दी गई है, दुर्भिसंधियां पैदा कर दी गई है कि ये तो सब केवल ब्राह्मणों का विषय है, हमारा नहीं है। अब मैं तुमसे अगर पूछूं, खाली एक ही दाखला पहले देखिए, व्यास का ही। व्यास कहाँ पैदा हुए, किसके लड़के थे? बोलो ना। ऋषि पराशर थे, लेकिन मम्मी कौन थी? और ये मत्स्यगंधा कौन थी? जो मछलियां पालते हैं। माछला कौन पालते हैं जिसको आप लोग कह देते हो कि ये शूद्र है? जिसको कह देते हो कि ये दूर दूर रहो। कहां से पैदा हुए व्यास? एक दलित के यहाँ पैदा हुए। अरे खेत के अंदर हल चलाने वाला कोई भी हो, जमीन कौन किसकी थी? महत्वपूर्ण तो जमीन किसकी, ये भी तो बात होती है। तब पराशर पुत्र व्यास मत्स्यगंधा के पुत्र होकर के आते हैं। तब फिर कहाँ तुम दलितों का अधिकार इसमें नहीं रह गया, या नीची जाति वालों का अधिकार कहाँ नहीं रह गया? या ये नीची जाति कहना क्या उस समय उपयुक्त लगेगा, अच्छा लगेगा? वाल्मीकि कौन था? दूसरा दाखला देता हूं। एक लुटेरा, एक डाकू। आपका इतिहास लिख गया वो, और राम के पैदा होने से पहले लिख दिया राम, ये वाल्मीकि रामायण।
महर्षित्व को प्राप्त कर लिया उसने, तब कैसे कह सकते हैं हम कि तुम अनधिकारी हो? और भगवत नाम का आश्रय लेने के बाद तो कोई अनधिकारी का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, कहाँ से बोला है ना? इसको दिल में झांक के देखते। ऐसा कोई वाल्मीकि आके खड़ा हो जाए तो उसको ब्रह्म समान देखेंगे अपने? झांक के देखो। जब तक ब्रह्म संहितम, यहां भी कहेंगे कथयाद्य महाभागे पुराणम ब्रह्म संहितम। ये महाभाग, आप हम लोगों के सामने ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले देवी भागवत का व्याख्यान कीजिए। हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। अब किससे कह रहे हैं ये बात? सूत। सूत ब्राह्मण होते हैं। लिखने वाला मत्स्यगंधा का छोकरा, कथा सुनाने वाला कौन? सूत जाति का सूत। और बच्चों, ये जानकर के आपको आश्चर्य होगा, इनको वेदाधिकार नहीं है सूतों को, लेकिन ये वैदिक विद्वान पंडित नीचे बैठे हैं और सूत ऊपर बैठ के उनको देवी भागवत सुना रहा है। देवी भागवत सुना रहा है। मैं तुम सब में, तुम तो अभी बच्चे हो, छोटे हो, तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो विद्वानों की सभा में भी बोलता हूँ, और मुझे उसमें कोई संदेह भी नहीं हो, न कोई किसी का भय है। मैं जानता हूँ कि शास्त्र कहाँ से पैदा हुआ और कहाँ शास्त्र ने अभिव्यक्ति किसकी दिया है। जब एक बार ब्रह्म बुद्धि हो जाती है, ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, तब कर्तव्यम नावशिष्यते, स्वयं कृष्ण गीता में कहते हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रह जाता। ज्ञातव्यम नावशिष्यते, उसके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। वो राममय सभी को देखने लगता है, भगवती का स्वरूप उसके अंतस में प्रकट हो जाता है, और जिनके हृदय में वो भाव प्रकट हो जाते हैं मित्रों, फिर उसके बाद में कहीं कोई जात पात की बात ही नहीं रह जाती है। अफसोस की बात है, अच्छा हुआ गुलाब आ गया। फिर मैं कहूँगा ये कांग्रेसी, ये बोलते हैं कि जाति गणना कराओ। किसकी गणना कराना चाहते हो भाई? हम आपको जाति से ऊपर उठा रहे हैं। जिनसे मैंने व्याकरण पढ़ा था वाराणसी में, अब तो दिवंगत हो गए, बहुत बड़े विद्वान थे। सौभाग्य था आप लोगों का भी, उस समय जब दीदी का सम्मान किया था अपने 50वें साल में, तब वो आए थे वाराणसी से, और उनका भी अपने लोगों ने भाव भावेश्वर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मान किया था। पंडित रामयज्ञ सुक्ति, बहुत बड़े विद्वान, व्याकरण के, वेदांत के, और मुझे बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। उन्हीं से 2 अक्षर पढ़े थे मैंने, सिद्धांत कौमुदी और आगे सत्येंदु शेखर वगैरह। तो महापुरुष जब यहाँ आए और उन्होंने देखा कि मैं आदिवासियों के बीच में रहता हूँ, वो अपने हाथ से स्वयं पाकी थे, 80 इयर्स के हो गए थे, फिर भी रोटी अपने हाथ से बना के खाते थे, किसी के हाथ का नहीं खाते थे। कमरे में सारी व्यवस्था की थी उनकी। तो मुझसे कहने लगे आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछिए। आपने यहाँ आदिवासियों में बहुत काम किया है। मैंने कहा अभी भी कर रहा हूँ, जब तक जीऊँगा तब तक करूँगा। तो आप इनके घर भी जाते होंगे? मैंने कहा जाता हूँ, मैं उनके यहाँ सोता भी हूँ। अब तो सबके बढ़िया बढ़िया घर बन गए हैं महाराज। पहले तो
इधर भैंस बनती थी और बीच में उसकी औरत की साड़ी होती थी और इधर हमारा खाटला होता था। इधर हम सोते थे और इधर वो भैंस किया करती थी, इधर हम करते थे। और हमने कहा आप आगे क्या पूछेंगे वो मैं बता दूं आपको। बोला बताइए। मैंने कहा अब आपका अगला प्रश्न ये होगा क्या आप उनके यहाँ खाते भी हैं? तो मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं उनके चूल्हे के पास बैठ जाता हूँ। उस समय हम जवान थे, बच्चे थे, ये तो चना भाई के घर में तो चूल्हे में बैठ के खाया है मैंने रोटी। अब बूढ़ा के नहीं बैठा जाता नीचे तो क्या कर लेंगे, चढ़ने में कितनी तकलीफ होती देख रहे हो तुम तो। बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। मैं कथा करने गया वहाँ उज्जैन, 6-6 घंटा बोलता था। तो वो महात्मा थे स्वामीनारायण, जिनके आश्रम पर मेरा प्रवचन रखा था मेरे भक्तों ने, वो आके खड़े हो जाते दरवाजे के पास में जब मैं गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलता। अरे हाथ जोड़ी नहीं बैठ और तमें क्यांयથી લાગતા નથી कि તમે ડોહા છો, આટલું ફાઇન બોલ્યા કરો છો, તમે ડોહા ડોહા હું કામ કર્યા કરો છો પોતાની જાતે। ऐसे करके वो मेरे को सुनाते हैं। तो मैं जाके बैठ जाता हूँ पंडित जी और उनके यहाँ खाता हूँ। इसमें मुझे कोई, आप आचार्य हैं? मैंने कहा हाँ हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, धर्माचार्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, आप ही लोगों से पढ़ के 2 शब्द आया हूँ, ये भी सच है। लेकिन पंडित जी एक बात याद रखिएगा, मैं गुरु जी बोलता था उस जमाने में तो, लेकिन अब पंडित जी बोल रहा था। पंडित जी मेरा धर्म इतने कच्चे धागे की तरह से नहीं है कि खींचने से टूट जाएगा, वैसे ही एक आदिवासी की रोटी खा लेने से मेरा धर्म टूट नहीं जाएगा। और हमारे इसी भाव ने समाज में दूरियां बढ़ाई है। हम चाहते हैं कि सारा समाज एक संगठित हो, ये जाति पाति के चक्कर से बाहर निकले और अपने स्वरूप को समझने की कोशिश करे, अपने स्वरूप को। सोना कह रहे हैं आप हमको कथा सुनाइए। एक बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं गुलाब भाई कि ये सांप के कान नहीं होता है, एक बात याद रखना। संस्कृत में सर्प को चक्षुश्रवा कहा गया है। क्या बोला गया है? चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा का मतलब होता है वो आंख से ही देखता भी है और आंख से ही सुनता भी है। अगर नहीं सुनता होता आंख से, वो अलग से तो कान दिख नहीं रहे हैं उसके, तो फिर किसी के बीन बजाने के ऊपर वो कैसे फुफकार मार के नाचने लगता है? नाचता है कि नहीं? तो कह रहे हैं यहाँ के ऊपर सोना, जिनके कान हो, जिसके सांप के कान नहीं है, वो भी मधुर संगीत श्रवण करके और बड़ा मदमस्त होकर के नृत्य करने लगता है, आनंद लेने लगता है। तो अरे ओ संसार के लोगों, तुमको तो भगवान ने 2-2 कान दिए हैं, फिर भी अगर तुम कथा नहीं सुन सकते, फिर भी तुम अगर देवी भागवत का श्रवण नहीं कर सकते, तो फिर मैं कहूँगा कि तुम्हारा बहरा होना ही ठीक है। तुम्हारा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ बोल रहे हैं। सकर्णा ये न शृण्वन्ति ते प्रकरणाः कथम न च। उन्हें बहरा क्यों नहीं कहना चाहिए? इसलिए याद रखो, ये न किन्ना पुपायेन कालाति वाहनम स्मृतम। देखो समय तो सबका जा रहा है। मैंने आते ही पूछा ना दीपक कि आज गुलाब भाई नहीं दिख रहा है, पूछा कि नहीं? क्योंकि मेरा श्रोता है, वो सुनता है मुझे बहुत प्रेम से, आज से नहीं वर्षों से सुन रहा है। इसलिए मेरी भी आदत पड़ गई कि वो सामने बैठा हो तो अच्छा लगता है। और फिर मेरे को कुछ लाग लपेट करके लगाना होता है ना, तो भी उसी को लगाता हूँ, क्योंकि वो सहन कर लेता है कि गुरु है मेरे। तो देखो समय तो सबका निकल रहा है। ये दीपक रिटायर हो गया,
हो गया ना रिटायर, दिसंबर में हुए ना। हाँ हो गया, समय निकल गया ना, गया ना हाथ से। ये छोकरा मेरी उतार रहा है, क्या नाम है इसका, वीरल। ये काले बाल वाला था, सफेद बाल होने लग गए। इस दीपक को देखो, इसका झंडा सफेद हो गया। हाँ, कितना बढ़िया श्लोक, आप सुनिए इस बात को। येन केनाप्युपायेन कालाति वाहनम स्मृतम। आपका समय व्यतीत होता जा रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा है। मूर्खाणाम व्यसनैः, जो मूर्ख लोग हैं वो व्यसनों के अंदर, गंदी बातों के अंदर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और जो बुधा नाम शास्त्र चिंतनैः, और जो विद्वान है, सत्संगी है, वो संतों के पास बैठ करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो बोलिए किसका समय अच्छा? ईमानदारी से बोलो। तेरी सासू ऐसी है, तेरी बहू ऐसी है, आ करवा करता। ओम श्रीम भाव भावेश्वराय नमः बोलो। ओम श्रीम भाव भावेश्वराय नमः। आ बोलવું સારું કે એ બોલવાનું સારું? બે ચાર સાસુઓ ભેગી થઈ જાય ને તો હજામત કરી નાખે બહુઓની, અને બહુઓ ભેગી થઈ જાય તો પછી કોની ઉડાડે? સાસુઓને ઉડાડે। હા, એ હાહુ, આ મારા હાહુને હરાહરા હવાજ। मतलब समय तो जा रहा है, किन बातों में जा रहा है इसको सोचिए। बुधा नाम शास्त्र चिंतन। और शास्त्र भी तीन प्रकार के होते हैं नारायण, सात्विक, राजस और तामस। ये देवी भागवत का उद्घोष है। सात्विकम तत्र वेदांतम, जो वेदांत शास्त्र है वो क्या है? सात्विक है। मीमांसा राजसम मतम, और मीमांसा दर्शन जो है वो राजस शास्त्र है। तामसम न्याय शास्त्रम च हेतुवादाभियंत्रितम, और जो न्याय दर्शन है, न्याय शास्त्र है वो तामस है। क्यों? उसके अंदर उठापटक है, शास्त्रार्थ है, और उसमें भी पराजित करने की भावना होती है। अच्छा, मैं अपनी बात बता दूं, मैं इसी शास्त्र का अध्येता था वाराणसी में, न्याय दर्शन का ही। इस तामस शास्त्र को ही पढ़ता था मैं वहाँ। कभी कभी वेदांत पढ़ाने वाले ये मेरे सर थे, वो चौपड़ी पटक देते थे मेरे आगे, तुम इतने तर्क करते हो कि हमको कंटाल आता है। मैंने कहा मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि न्याय शास्त्र करवा रहा है तो कर रहा हूँ मैं। कभी कभी हॉस्टल से हम निकलते गंगा किनारे घूमने के लिए, तो दूसरी पाठशाला के अगर बच्चे सामने से आ रहे होते थे ना, तो मेरे को देख के रास्ता बदल देते थे कि यार वो मगजमारी करेगा, छोड़ो नहीं यहाँ से। इतनी तर्क बुद्धि हुआ करती थी न्याय दर्शन में। इसीलिए इसको कहा गया तामसम न्याय शास्त्र। भगवान राम जब पिताजी ने तो बोला भी नहीं था, बोलने वाली तो माता कैकेयी थी, फिर भी मान लिया और 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल गए। अब जब वो निकल गए 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो रास्ते में बहुत ऋषि लोग मिलने के लिए आए थे, उनमें गौतम भी आ गए। और न्याय दर्शन का निर्माण किसने किया, किसने रचना किया? गौतम ने किया। और गौतम ने न्याय दर्शन में कालावच्छेदेन समवायी कारणत्वात् एक ऐसा नियम बना दिया कि देखो इस समय क्या घड़ी में बज रहा है, 1:45 है ना। अब वलसाड़ में कोई देखेगा तो वहाँ क्या बजा होगा, बंबई में देखेगा तो इसको कालिक संबंध बोलेंगे।
इसको क्या संबंध बोलेंगे? कि 1:45 वलसाड़ जो है वो बिलपुड़ी में है और बिलपुड़ी वलसाड़ में है। इसलिए गौतम ऋषि ने कहा, राम बड़े बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, बिल्कुल बुद्धि की बात नहीं है। बोले क्यों? अरे तुम्हारे पिता ने कह दिया चलो ठीक है भाई वन में जाओ, लेकिन मेरा न्याय दर्शन पढ़ लेते ना। तो बोला इससे क्या होता? बोला इस कालिक संबंध से अयोध्या जंगल में और जंगल तो तुमको जाना ही नहीं पड़ता। कहाँ आ गए? भगवान राम को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा मेरे को सिखाने के लिए आया, पिता की आज्ञा का भंग करवाने के लिए। इसलिए कह दिया मैं तुम्हारे को अभिशाप देता हूँ कि तुम्हारा न्याय दर्शन जो पढ़ेगा वो मूर्ख होगा, गधेड़ा होगा। तो गौतम ऋषि बेचारे घबरा गए। इतनी मेहनत करके न्याय सूत्र लिखा है मैंने और इतना बढ़िया तर्क शास्त्र लिखा, और ये तो राम जी ने तो अभिशाप दे दिया। इसके बाद में वो चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी और कहने लगे महाराज ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप कृपा करके और मुझे मेरे दर्शन को मुक्त कीजिए अपने अभिशाप से। तब भगवान राम ने कहा तुम्हारा न्याय दर्शन पढ़ने के बाद अगर उसने वेदांत दर्शन पढ़ लिया तो फिर मेरा शाप लागू नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को न्याय पहले पढ़ाया जाता है, वेदांत बाद में पढ़ाया जाता है, जिससे कि लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं रहे। तो सात्विकम वेदांत शास्त्रम, वेदांत शास्त्र क्या है? सात्विक है। मीमांसा राजसम और न्याय दर्शनम तो तामसम। इस तरह से ये शास्त्रों का विवेचन कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं तत्र भागवतम पुण्यम पंचमम वेद संहितम कथितम यत् त्वया पूर्वम सर्वलक्षण संयुतम। ये 5वां जो पुराण है इसके लिए आज मैं कह रहा हूँ, स्वयं भगवान वेदव्यास ने बात घोषित किया। वेद 4 ही हैं, लेकिन ये जो पुराण है ये पंचम वेद के रूप में प्रसिद्ध होंगे। लोग इनको पंचम वेद मानेंगे। और इतिहास के अंदर जो महाभारत है उस महाभारत को भी 5वें वेद के रूप में समाज स्वीकार करेगा। और आज वही स्थिति विद्वानों के बीच में है। जो सुधा अमृत उसका पान करके बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, उससे तो अच्छा है, उस अमृत से तो अच्छा है भागवतामृतम का पान करें और भव सागर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। अगर आप भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तमने पण लागतु होय कि हमें कोई मुसीबत में છીએ तो देवी भागवत वाँचो, छुटकारो થઈ જશે। अथवा દેવીનો યજ્ઞ જેમ કે અહીંયા આપણે કરી રહ્યા છીએ હમણાં નવચંડી યાગ, આ નવચંડી યાગમાં सम्मिलित बनो, અહીંયા ભેગા થાઓ, પરિક્રમા કરો અને તમે તમારા મનમાં વિચારીને પરિક્રમા કરજો। અને એ વાત ન થાય તો મારા પાસે આવીને તમે મને કહી શકો છો કે ગુરુજી આ વાત થઈ નહીં। હું સાક્ષી છું, મારા મહાદેવ સાક્ષી છે, મારી માતા સાક્ષી છે। હું તમને કહું છું તમારા મનની વાત પૂરી થશે જ થશે। અને આ માત્ર હું નથી કહેતો, स्वयं भगवान वेदव्यास कह दिया है। अतः सर्वरसोपेतम पुण्यम भागवतम वद। संपूर्ण रसों का स्वरूप ये श्रीमद् भागवत है। और बिना श्रीमद् भागवत श्रवण किए ज्ञान नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो भागवत का श्रवण कीजिए। आज इतना ही बोलूँगा, समय भी हो गया, जल्दी शुरू भी कर दिया था। अब बाकी की जो कथा है वो के पटेल के यहाँ अपने मोटा पूर्णा में सुनाएंगे आगे के अध्याय। वर्तमान में इतना ही। और पंडित जी से फिर एक बार प्रार्थना करूँगा कि धुआड़ा हमारे प्रवचन की बात करिए और आप शाम तक इस धुआड़े में बैठ के फिर आइएगा भगवान।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। તમને